मैं मौजूद हूँ नोटिंगम में। फेरोस इसका नाम है और इसका जो है मैं ट्राई करने लगा हूँ स्टेक। कौन सा स्टेक खाना चाहिए मुझे नहीं पता, और कौन सा स्टेक यहाँ का पॉपुलर है मुझे नहीं पता। तो अभी देखते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ का स्टाफ जो है वो कोई रिकमेंड करता है। मुझे एक दो स्टेक्स के बारे में आइडिया है, टी बोन्स वगैरह का, लेकिन फिर भी जो है देखते हैं कि अंदर जाके कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आए अंदर चलते हैं। यहाँ पे वेट कर रहे हैं, कोई अभी सर्व करने आए। हाय, आई एम हियर फॉर स्टेक, सो यस इफ यू कैन जस्ट डायरेक्ट मी टू द टेबल प्लीज। या थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सो नाज़रीन, मैंने यहाँ पर इनकी जो एक कुलीग हैं, स्टाफ हैं फेरोस की, उनसे कहा है कि मुझे ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि कौन सा बेहतरीन है, मैं किस स्टेक को जो है ट्राई करूँ, इसलिए कि मुझे पता नहीं है यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, व्हाट इज़ फेवरेट। सो शी विल एक्सप्लेन टू मी ऑब्वियसली। I'll talk to her in English language. So thank you so much for giving your time to my YouTube channel for reviews. Hi. And so, what's your name? Sorry. Tia. Tia. So Tia, can you explain about what is special in Feroz here, and why I should try any specific Feroz? Feroz, sorry. So is there anything you would like? I'm here for steak. Yeah. Okay. So any special steak you think that popular in Asian community? I'm just talking more about Pakistani Indian community maybe. Yeah, but you can talk in general as well. Okay. Which one is favorite? Yeah, I'll try my best. Yeah. Okay. So in terms of steak, I'd probably recommend like the ribeye or the sirloin, because I say they're probably more like tender here. But depending on how you get it cooked, so if you get it like medium well, it's like I'd say that's really nice. If you get it more on the well done side, I'd say that's more chewy. So it depends how you want it and how you want it cooked. But like whenever I'm on my break, I probably go for like a steak that's ribeye, probably marinated and medium well done. That's my preference. They're really good here, and they're really popular as well. Like a lot of them go out in a day, and as well there's like a combo that you can get on here where it's like a few things all together. That's really popular as well here. And personally, I like any steak which is which has a and it's not very well done, like not very cooked. Yeah. But I don't want raw as well. Raw as well, yeah. I don't want that either. So I want cooked, but not overcooked. Yeah. I don't want it to be dry. So like a bit juicy as well. But what about tea? I've heard a lot about steaks and tea bones. Oh, T-bone here, yeah, that's really good as well. So which one do you prefer? Which one you want me to try today? I'd say the medium well ribeye. I'd say marinated. I think that's probably the best one to go for. Right, okay. So, medium, which one, sorry? Medium ribeye. Where is that? Steaks over here. So here's ribeye, yeah. Okay, so medium ribeye, I'm going to try on Tia's recommendation. And marinated. Marinated. And this £16 and 95 pence. And will I have something included on this, like what normally you so it should come with, so pick a sauce and pick a side. So this comes with a side and a sauce, so like chips. And you can get like quite a popular sauce is garlic and mushroom. So I'd probably go for that one. That's really nice. Okay, I will try that one. Okay, Thank you so much for the recommendation. no worries. So I'm waiting for ribeye now. Let's see how it tastes like. Thank you so much. जी नाज़रीन, आ गया है ये स्टेक और मैं इसको क्लोजली दिखा रहा हूँ, और साथ चिप्स हैं और ये इनकी सॉस है, और अब खा के देखते हैं कि कैसा है, मैं फिर आपको बताता हूँ।
अच्छा टेंडर है, अच्छा ये काटने में अच्छा आराम से जो है वो हो रहा है। वेरी नाइस। मैंने जो है वो टी बोन वाला भी स्टेक खाया हुआ है यूके में, और ये जो है रिबेन जो है ये डिफरेंट है, लेकिन इसमें बोन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई बोन नहीं है बीच में। ये फिर भी जो है हमें नॉर्मली जो है वो बोन के साथ गोश्त ज़्यादा मज़े का लगता है, और वो होता भी मज़े का, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं ट्राई करना चाहता कि जो टी बोन के अलावा कोई और स्टेक तो वो कैसा लगेगा। ये मुझे एक्सपीरियंस जो है लगता है कि मेरा अच्छा हो गया है। अगले रिव्यू में जो है वो टी बोन का भी करूँगा किसी स्टेक में, यहाँ या कहीं और रेडफोर्ड में भी। जी नाज़रीन, मैंने तो अब कर लिया है, खाना खा लिया है, स्टेक खा लिया है और बहुत मज़े का था, मज़ा आ गया। और डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक ट्राई किया और जो कि अच्छा था और रिकमेंडेड है। अगर आपको स्टेक का दिल है तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। जो ऑनलाइन रिव्यूज़ थे मुझे लगता है कि वो जस्टिफाई करते हैं स्टेक के हवाले से, लेकिन मैं सिर्फ स्टेक ही ट्राई किया है। अगर दोबारा कभी चक्कर लगा इधर का तो फिर फेरोस का, तो फिर मैं उनके बर्गर भी हैं, पेपर चिकन भी है, वो भी ट्राई किया जा सकता है। और मैं बाहर अवॉइड करता हूँ नान और चावल को, तो ज़्यादा कोशिश ये करता हूँ कि ग्रिल या स्टेक इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ही खाऊँ। तो देखते हैं अगला रिव्यू किस पे आता है। तो यहाँ पर जो है मेरे साथ मौजूद हैं कुछ गेस्ट हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या इस पर है रिव्यू, कि वो क्या समझते हैं, उनका तबसरा क्या है। जी नाज़िर, मेरे साथ यहाँ पे एक फैमिली आई हुई थी और ये उर्दू बोल सकते हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि इस जो फेरोस जो रेस्टोरेंट है इस पे कुछ कमेंट करें। ये यहाँ पर आते तो अब्रार साहब, आपका नाम है यू अब्रार, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम विद तबसरा यूके। सो वी जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट, ऑल्दो I've just tried one of the steak and it was very delicious, but why you come here with your family? What specialty attracts you here? Well, I've traveled from Derby. मैं तकरीबन यहाँ से कोई 25-30 मील दूर रहता हूँ, लेकिन यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि पहली बात ये है ओपन किचन है इनकी, हर चीज़ नज़र आती है, मेन्यू भी बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो इसलिए यहाँ आते हैं क्योंकि जो वो टेस्ट है, वो कंसिस्टेंसी है फेरोस की, वो तब्दील नहीं होती, हमेशा वो एक ही रुख में रहती है माशाल्लाह। दिस इज़ आवर 5th or 6th टाइम हियर। अच्छा, जब से ओपन हुई है, जब फुर्सत मिले तो हम कोशिश करते हैं यहीं आकर खाने की। हाईली रिकमेंडेड। अल्हम्दुलिल्लाह डर्बी से ट्रैवल करके आते हैं विद फैमिली, तो फैमिली भी हमारे साथ है। उनसे पूछे कहाँ जाना है, फेरोस जाना है। तो फेरोस में आपको कोई स्पेशल चीज़ जो आप रिकमेंड करें ऑडियंस को, व्यूअर्स को? टू बी ऑनेस्ट इनकी पेरी पेरी चिकन भी बहुत सुंदर है। जो लैम्ब चॉप्स है तो मैं रेड मीट बहुत पसंद करता हूँ, जिसको हम अपने ज़बान में मोटा गोश्त कहते हैं। ठीक है। तो टी बोन स्टेक इनका जो है इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एज वेल, क्योंकि वो दोनों मीट्स आपको मिलते हैं। तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आई रिकमेंड। खाना तो सब अच्छा है, उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, लेकिन लैम्ब चॉप्स, पेरी पेरी चिकन और जो स्टेक्स हैं ना माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर अब्रार फॉर योर टाइम विद तबसरा यूके। ताकि मैं आपका भी बहुत शुक्रिया।